Hello class, this is chemistry class for class 9th, and here I am going to start chapter 1. The name of the chapter is Matter in Our Surroundings. It is the first chapter of the syllabus, and the topics that we have to clear here are matters and its characteristics. मैटर और उसकी क्या क्या विशेषताएँ होती हैं. स्टेट्स ऑफ मैटर, कितने स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं. बेसिकली देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, बट एट प्रेजेंट साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड 2 more स्टेट्स विच इज़ BEC एंड प्लाज्मा. ठीक है, बट इन डिटेल वी हैव टू स्टडी ओनली 3 विच इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. Next is diffusion and its application. Diffusion is when the particles of one substance mix into another kind of substances. Such kind of movement is called diffusion. ठीक है. Next is Brownian motion. It is a kind of motion performed by the particles of solids. Next, interconversion of 3 states of matter. Solid converts into liquid, liquid into gas. Ice converts into water, water converts into water vapor. है ना. तो how does it happen? So we have to study this in this topic. Next is evaporation. Conversion of liquid into gases is known as evaporation. Next is sublimation. There are certain substances which can directly convert from solid into gases. ठीक है. So this process of converting solids directly into gases without converting into liquids is known as sublimation. Now few points are there which we have to study in this points to remember. Okay, we will study that. Now let's start the chapter. The first thing is what is matter. Now what is matter? Anything which has the mass. एक तो उसका होना चाहिए वज़न. मास मीन्स वज़न, उसका कोई ना कोई भार होगा ही होगा. एंड सेकेंड थिंग इज इट ऑक्यूपाई स्पेस. वो क्या करता है, जगह लेता है. इट्स द स्पेस मीन्स जगह. इट्स नॉट अबाउट द स्काई और अंतरिक्ष. स्पेस इज जगह. तो एयर वाटर, air, water, stone, sand, clouds, pencils, books, these all, everything is made up of matter. These all things are made up of matter. How you can say that? चलो, बुक इट हैज़ द मास. बुक का कोई ना कोई वजन होता है और बुक रखने के लिए अपनी कोई जगह, एक सर्टेन जगह जिसको चाहिए ही चाहिए रखने के लिए. सिमिलर अबाउट द पेंसिल, इट हैव सम मास. इसका कुछ ना कुछ वजन होता है और वो भी अपने रखने के लिए जगह लेगा. सेम फॉर द क्लाउड्स, सैंड, स्टोन्स, है ना. नाउ इट्स अबाउट द एयर एंड वाटर. हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट एयर हैज़ मास and it occupies space or not? देखिए, in lower classes you must have studied about a balloon. There is an activity related to the balloon. What it happens, आपको एक तरफ inflated balloon रखना है and at the second side you have a inflated balloon, है ना. तो what you will see that the mass, this balloon is heavier than this one, है ना. जो बड़ा वाला बलून है वो भारी होगा कंपेयर टू दिस स्मॉल वन. Because why the balloon is heavier? It is because of the air. बलून क्यों भारी है? क्योंकि उसके अंदर हवा है. और बलून क्यों हल्का है? Because it have less air than the larger one. बड़े वाले बलून के कंपैरिजन में छोटे वाले बलून में हवा कम है. तो what is responsible for the heaviness or lightness of the balloon? The particular thing is air. So yes, now you can say that yes, air has the mass and it occupies space. Now water, you can apply this activity same for the water. A balloon filled with the water, a balloon without the water balloon is heavier than the air balloon, है ना. तो similarly matter in everything in this universe that occupies space and has mass. It is the particular definition about the matter. कोई भी चीज़ इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में जिसमें मास होता है, जिसका अपना एक वज़न होता है और जो अपने लिए जगह लेती है, it is called matter. एग्जाम्पल चेयर, पेन, एनिमल्स. हम लोग हैं, एनिमल्स हैं, जानवर हैं. दीज ऑल आर मैटर. क्यों? क्योंकि हम लोग का अपना वजन है ही है, हम लोग अपने लिए जगह लेते ही हैं. ठीक है. वन नोट इज हेयर दैट इमोशंस एज जॉय, सॉरो, लव, हेट एक्सेट्रा आर नॉट द एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर. ये सारे जो हैं ये मैटर के एग्जाम्पल नहीं हैं.
क्यों नहीं है? बिकॉज हम खुश तो हैं, ठीक है, लेकिन हम 1 किलो खुश हैं या 2 किलो खुश हैं, या हम अपनी खुशी जो है मास में भी नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं, एंड हमारी खुशी कितनी है इस अपने लिए कोई जगह भी नहीं लेगी। मान लो हम बहुत खुश हैं तो कमरा भर जाए तो हम देखें कि कमरे में बहुत सारा खुशी भरा हुआ है, तो वी आर नॉट एबल टू डू दैट। तो ऑल काइंड ऑफ इमोशंस आर नॉट इन द कैटेगरी ऑफ मैटर्स, तो दीज आर द एक्सेप्शंस ऑफ मैटर। Here you can see water, ice, cattle, it's water vapor exactly, the ice cream, stone, volcano, erupting volcano, gold, the moving air, these all are the example. Air is the matter, tree is the matter, moving air is the matter, ठीक है, these all are the examples of matter. Now next is constituents of matter. Constituent you can understand constituent by saying it a part. Constituent means होता है part, हिस्से। कोई भी चीज़ जो है किन किन चीज़ों से बनी होती है, तो बेसिकली इन आवर एपिक्स ऑल्सो इट इज़ एक्सप्लेन दैट एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ पंच तत्व, 5 एलिमेंट्स, है ना, विच इज़ एयर हवा, वाटर पानी, अर्थ पृथ्वी, स्काई आकाश, एंड फायर अग्नि। इस दुनिया में जो भी चीज़ें हैं इट इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ 5 elements which are known as पंच तत्व। So which is it present also it is proved by the scientists कि कहीं ना कहीं these all 5 factors are responsible for every kind of matter. So therefore matter is the composition of these 5 constituent. नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, क्या विशेषताएं होती हैं, आप कैसे जस्टिफाई करोगे एनीथिंग इज मैटर और नॉट। देन दे आर फ्यू पॉइंट्स विच कैन बी जस्टिफाइड दैट इट इज under the category of matters or not. First is matter is made up of small particles called atom, ठीक है, जितने भी matters हैं वो particles, छोटे छोटे particles के बने होते हैं which is called atom. Atom is the smallest particle of any substance. अगर आप किसी चीज़ को तोड़ने जाते हैं तो आप तोड़ते रहिए, but at any situation you will find it that you are not able to break that particle into smaller one. So that smallest particle that you cannot break down, that smallest particle is known as atom. So how can you justify that? See, here is an activity. Look, here it is a water, है ना, it is a beaker. It is a beaker instrument. This instrument glass, कांच का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, लैब्स में यूज़ होता है, इट इज़ कॉल्ड बीकर। दिस बीकर इज़ फिल्ड विद 200 ml ऑफ वाटर, इसमें 200 ml वाटर फिल है और ये आपका लेवल है इसमें वाटर का, ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट इज हेयर यू हैव टू टेक 15 ग्राम ऑफ शुगर, है ना, यू हैव टू मिक्स दिस शुगर इनटू दिस वाटर, ठीक है। व्हेन यू जस्ट हैव टू स्टेयर इट मीन्स घुमाना, स्टेयरिंग इट विद ग्लास रॉड, आप देखेंगे कि द लेवल ऑफ द वाटर डज नॉट इंक्रीजेस हेयर, द लेवल ऑफ द वाटर डज नॉट इंक्रीज, बट यू कुड नॉट फाइंड द पार्टिकल्स ऑफ शुगर इन इट विच इज शोइंग हेयर क्लियरली। सी here you can easily see the particles of sugar here, but here all the particles are vanished, disappeared. जितना भी शुगर है वो सारा disappear हो गया है। और बेसिकली जब कोई चीज़ ऐड हुई है तो उसका लेवल भी बढ़ना चाहिए, बट द लेवल इज स्टिल नॉट येट इंक्रीज्ड, सो वेयर द पार्टिकल्स ऑफ शुगर हैज़ गॉन। दीज आर बेसिकली मिक्सड बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। क्या होता है कि लिक्विड स्टेट्स के बीच में जो है स्पेस होता है, तो जब भी आप इसमें कोई वाटर मिक्स करते हैं ठीक है, तो इट गेट प्लेस्ड बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द वाटर। तो जो जगह थी वहाँ गया है शुगर के पार्टिकल्स, वो कहीं ऊपर से ऐड नहीं हुए, दैट्स वाई दिस लेवल डज नॉट इंक्रीजेस, है ना। तो नेक्स्ट इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, बट इट वेरीज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। जो जितने भी होते हैं मैटर वो सब पार्टिकल्स के बने ही होंगे, लेकिन ये पार्टिकल्स स्टेट टू स्टेट वारी करेंगे। सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच का स्पेस अलग होगा, लिक्विड के बीच का स्पेस अलग होगा, एंड गैसियस के बीच का स्पेस अलग होगा। आई विल एक्सप्लेन इट इन द फर्दर
class, just wait for a while. To clear the above these all examples, you can perform one more activity, this one. In this you have to take a water, है ना, and you just have to add a color in it. ठीक है, after stirring, इसको हिलाने पे you will see that the whole water turns into pink. As you can see here, water is transparent, but here water turns into pink. Why? It is because of adding the color in it, है ना. तो why it happens? Because the space between the water is filled with this ink या color that you have added in it, है ना. तो it is because of the particles of liquid water and the particles of ink, which is again liquid, they get mixed between the space of each other. That's why whole water turns into pink color. You can explain it again with taking the chemical known as potassium permanganate. Potassium permanganate is a substance which is purple in color, है ना. So it is the, again this ink one activity is here which is performed by the potassium permanganate. Now the third point is the particles of matter are too small to be observed with the naked eyes. Naked eye मतलब खाली आँखों से आप ऐसे डायरेक्टली उसको देख नहीं सकते हैं ना. You need any kind of instrument like microscope, है ना. आपको कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिससे आप देख सकें. आपको सीधे अपनी आँखों से आप पार्टिकल्स को देख नहीं सकते, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये बहुत ही स्मॉल होते हैं. दीज आर टू स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं. ठीक है, यहाँ पे अगेन वही एक्टिविटी है. इन अ टेस्ट ट्यूब इट इज़ अ वाटर, है ना. यू हैव टू टेक द वाटर एंड यू हैव टू पुट अ केमिकल नोन एज कॉपर सल्फेट. आफ्टर मिक्सिंग द होल वाटर टर्न्स इनटू पर्पल, टर्न्स इनटू ब्लू, है ना, because the particles of copper sulfate mixed between the particles of water, and you could not recognize that where is the particle of potassium permanganate, copper sulfate, and where is the particle of water. So easily you can say that yes, atoms are very small and we cannot observe it by the naked eyes. Next, fourth point, the particles of matter attract each other because of force of attraction. Each kind of matter, they are made up of particles, and particles, between the particles they have a kind of force which is known as intermolecular force, which is known as intermolecular फोर्स, है ना. इंटर मीन्स बीच में, इन बिटवीन ऑफ एनी काइंड ऑफ मॉलिक्यूल. पार्टिकल्स को मॉलिक्यूल कहा जाएगा. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, है ना. तो एज you can easily explain it by taking the example of any kind of substance, by like here it's like written here, you to break a piece of solid you have to apply as chalk, है ना, या anything the solid. जितना ज़्यादा सॉलिड होगा उतना ज़्यादा आपको ताकत लगेगी उसको तोड़ने में, है ना. तो बेसिकली यू डू नॉट नीड टू अप्लाई द फोर्स टू ब्रेक देम, यू नीड फोर्स टू क्रिएट अ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स. पार्टिकल्स तभी टूटेंगे जब उनके बीच में स्पेस बढ़ेगा, और स्पेस तब बढ़ेगा जब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होएगा, है ना. दोस्ती कमज़ोर कब होती है? जब आपकी दोस्ती पे कोई ना कोई कमी होती है, एक दूसरे पर ट्रस्ट कमज़ोर हो जाता है, तो आपकी दोस्ती कम हो जाती है. तो वो भी एक तरह का फोर्स ही है. सिमिलरली पार्टिकल्स के बीच में जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना ज़्यादा वो पार्टिकल्स पास में होंगे और चीज़ें उतनी हार्ड या सख्त होंगी. ठीक है. Here is a table. Complete the chart with yes or no and a state of matter. ठीक है. Here are few items. These are the items. ठीक है. They are and definite volume, definite shape and states of matter. लिखिए desktop like the computer. It have a volume. इसका अपना कोई ना कोई space होता है. Yes. ठीक है, यस है इसका. डेफिनेट शेप, उसका शेप फिक्स होता है. यस है. तो ये कौन सा स्टेट है? इट इज़ अ सॉलिड स्टेट. पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक की बात करिए. कोल्ड ड्रिंक है, अगर एक गिलास कोल्ड ड्रिंक आपके पास है तो अगर आप उसको बॉटल में डालिए तो भी वो एक गिलास रहेगी. आप उसको चाहे बकेट में डालेंगे तो भी वो एक गिलास ही रहेगी. तो भी उसका वॉल्यूम फिक्स है. तो यस, वॉल्यूम इज़ फिक्स्ड. शेप फिक्स नहीं है, क्योंकि ग्लास में जाएगा ग्लास का शेप ले लेगा, बॉटल में जाएगा बॉटल का शेप ले लेगा. तो इट इज़ अ लिक्विड. थर्ड इज एयर. एयर का वॉल्यूम फिक्स होता है? नहीं. एयर का वॉल्यूम
नेक्स्ट इज डेफिनेट शेप, शेप फिक्स होता है नहीं, अभी हमने बताया बलून है तो बलून की शेप का हो जाएगा, तो शेप भी इसका फिक्स नहीं होता, नो, तो इट इज़ अ गैस। नेक्स्ट इज सिरप, सिरप दवाई पीते हो जो कफ सिरप वगैरह होती है, तो वो भी उसका शेप वॉल्यूम फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है, 100 ml है बॉटल, 10 ml की बॉटल है, 20 ml की बॉटल है, ठीक है, तो शेप वॉल्यूम तो उसका फिक्स रहता है, शेप फिक्स रहता है नहीं, शेप उसका फिक्स नहीं रहता है, तो इट इज़ गैस। बाइक की सीट, बाइक की सीट का जो है शेप है वो वॉल्यूम जो है सीट का कवर होगा वो फिक्स होगा, जितना लगेगा उतना ही लगेगा। डेफिनेट शेप है, डेफिनेट शेप ऑब्वियसली है, तो ये क्या है, ये एक तरह का सॉलिड का एग्जाम्पल है। हीलियम, हीलियम इज़ अ काइंड ऑफ गैस, ये एक तरह की गैस है, तो इसका वॉल्यूम फिक्स होगा लेकिन इसका शेप फिक्स नहीं होगा, इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ गैस। आई होप दीज ऑल थिंग्स आर क्लियर टू यू। Okay, next let's move forward. Based on the physical properties, all the matters are classified into 3 states. ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस, फिजिकल मीन्स होता है जो आप देख सकें, है ना, उसके बेसिस पे बेसिकली दे आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड होता है, सेकंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैसेस। बेसिकली यू हैव टू स्टडी अबाउट दीज स्टेट्स ओनली, 2 more स्टेट्स आर देयर विच यू नीड अ बेसिक इंट्रो, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज 3 ओनली, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज स्टेट्स, हेयर यू कैन सी इट्स आइस, सॉलिड स्टेट, व्हेन यू give some heat to it, it will turns into liquid water, and when you increase the heat more it will turns into gaseous cloud. Again if you cool it down, अगर ठंडा करोगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको और ठंडा करोगे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में, तो इट इज़ इंटर कन्वर्जन, है ना। आई विल एक्सप्लेन इट मोर further, ठीक है। नाउ लेट्स मूविंग टू दिस टॉपिक। फर्स्ट वन इज सॉलिड स्टेट। सॉलिड्स आर समथिंग दैट इज कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट मीन्स घना, बहुत छोटा होगा, बहुत हार्ड होगा, मतलब पार्टिकल्स जो है बहुत कॉम्पैक्ट होंगे उसके पार्टिकल्स आपस में। सॉलिड्स कैन बी डिफाइंड एज द स्टेट्स ऑफ मैटर, जितने भी सॉलिड्स हैं इन विच द पार्टिकल्स आर क्लोजली अरेंज, इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली अरेंज होते हैं, मतलब पार्टिकल एक दूसरे के एकदम पास पास होते हैं। द सॉलिड्स as ice, wood, coal, stone, these all are the examples of solid. So basically what are the characteristics? It's first one, solids have definite shape एंड वॉल्यूम, जितने भी सॉलिड्स उनका शेप भी फिक्स होता है और उनका वॉल्यूम भी फिक्स है। सेकेंड वन इज द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर कॉम्पैक्टली पैक एंड हेड थ्रू अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से एकदम पास पास होते हैं, क्यों? क्योंकि उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बताया था हमने, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, और जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा पार्टिकल्स उतने ज़्यादा पास में होंगे और उतनी ज़्यादा वो चीज़ हार्ड रहेगी, ठीक है। सॉलिड्स जनरली हैव हाई डेंसिटी, ठीक है, तो इसकी वजह से, क्योंकि जो पार्टिकल से कॉम्पैक्टली अरेंज हैं, ठीक है, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसीलिए जो है सॉलिड्स की डेंसिटी वो जनरली हाई होती है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड अंडर द नॉर्मल कंडीशंस। अब फॉर एग्जांपल आप लोहे की बात करिए, अगर आप नॉर्मली एक लोहे के पीस को अगर आप दबाने की कोशिश करेंगे, यू वुड नॉट बी एबल टू डू दैट, बट व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दैट आयरन पीस, जब आप लोहे के टुकड़े का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे देन इट विल मेल्ट, है ना, और मेल्ट होने के बाद क्या होगा, उसका स्टेट चेंज हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिक्विड्स को आप वाटर को इजीली कंप्रेस कर सकते हो, तो इट्स नॉट अबाउट द मटेरियल, इट्स ऑल अबाउट द स्टेट, ठीक है। तो स्टेट पर डिपेंड करता है कि वो प्रॉपर्टीज़ क्या शो करेगा, कहीं ना कहीं उस पर वो काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। तो सॉलिड्स को आप जनरली बहुत ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, उसकी कंडीशन चेंज कर दोगे तो येस यू कैन ईजीली डू दैट। फोर्थ वन इज़ द काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी? The energy produced because of the speed of anything। अगर कोई चीज़ मूव कर रही है, स्पीड है उसमें, तो उसकी वजह से उसमें काइंड ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगी, है ना, जिसकी वजह से उसमें कोई भी काम हो रहा होगा, तो दैट एनर्जी इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी, मीन्स स्पीड एनर्जी। यू कैन जनरली अंडरस्टैंड इट बाय स्पीड एनर्जी, मतलब स्पीड होएगी, जहाँ काइनेटिक एनर्जी होगी वहाँ स्पीड होएगी ही होएगी। तो यहाँ जो पार्टिकल्स के, सॉलिड के जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी होगी वो बहुत स्लो होएगी। क्यों स्लो होएगी? बिकॉज टू मूव अ कार यू मस्ट हैव द स्पेस फॉर द मूवमेंट ना। अगर आपको कार चलानी है सड़क पे, तो सड़क पे उतनी जगह होनी चाहिए ना कि कार मूव करे, है ना। बट इफ़ देयर इज़ नो स्पेस देन वेयर यू विल मूव द कार।
तो इट्स द सेम थिंग हैपन्स हियर. सॉलिड्स के बीच में पार्टिकल्स इतने क्लोज होते हैं कि उनके बीच में स्पेस ही नहीं होता दैट पार्टिकल्स कैन मूव, है ना. एंड बिकॉज ऑफ दैट उनमें मूवमेंट ऑलमोस्ट या तो बहुत स्लो होता है या ना के बराबर होता है. इट इज़ ऑलमोस्ट nil या नेग्लिजिबल. ठीक है. तो बट अगेन इफ़ यू चेंज द कंडीशन दैट इज़ हीटिंग, अगर आप उस पर्टिकुलर सॉलिड को हीट करोगे, गर्म करोगे, तो उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी. वाई? बिकॉज द स्टेट विल चेंज, है ना. आयरन पीस कन्वर्ट्स इनटू, व्हेन यू मेल्ट इट विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड, तो वहाँ पे उसका मूवमेंट में चेंज आएगा. बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट सॉलिड देन द काइनेटिक एनर्जी इज़ वेरी स्लो इन इट. Here is the definition. The kinetic energy. The kinetic energy of an object is the energy that is produces due to the motion of the object. I have defined it here. Fifth point is solids are generally rigid in there. Rigid means hard. ठीक है, बता चुके क्योंकि इस पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए वो रिजिड होते हैं. एंड कैन नॉट चेंज देयर शेप, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो उनका शेप भी इस वजह से फिक्स रहता है. दीज ऑल द रीजन्स depending on these questions are supposed to be, you can be asked about regarding these kind of questions topic. ठीक है. Solids generally do not show diffusion because their particles have very less kinetic energy. पार्टिकल्स के बीच में डिफ्यूजन नहीं होता है, मतलब सॉलिड्स किसी भी दूसरे सब्सटेंस में मिक्स होने के लिए थोड़ा सा उनको टाइम लगता है. शुगर को अगर आप मिक्स करोगे वाटर में तो इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम टू मिक्स इन द शुगर, है ना. बट देयर आर सम सॉलिड्स लाइक कैम्फर एंड ड्राई आइस विच शो डिफ्यूजन. लेकिन कुछ होते हैं जो डिफ्यूजन शो करते हैं, क्योंकि कैम्फर हमने क्या बताया, इट शोज सब्लिमेशन, है ना. कैम्फर सॉलिड कन्वर्ट्स डायरेक्टली इनटू गैसेस, और गैस तो किसी भी चीज़ में इजीली मिक्स हो सकती है. ठीक है. 7th पॉइंट इज सॉलिड्स डू नॉट फिल द स्पेस. सॉलिड्स डू नॉट फिल द कंटेनर. कंटेनर मीन्स एनी काइंड ऑफ बर्तन, यू कैन से, है ना. किसी भी चीज़ में आप जिस पर्टिकुलर कंटेनर में डालोगे वो उसका शेप उसको पूरी तरह से फिल नहीं करेगा. जैसे आपने घर में देखा होगा, जैसे पापा कोई सामान लाते हैं तो मम्मी जब उसे डब्बे में भरती हैं, भर जाता है तो उसको थोड़ा सा हिला देते हैं, है ना. तो हिलाने से थोड़ी जगह स्पेस उस डब्बे में और बन जाती है ताकि आप उसको सेटल कर सकें. ठीक है. तो सॉलिड्स को अगर किसी कंटेनर में भर आते हैं तो पूरी तरह से वो भरेगा नहीं, उसमें कुछ ना कुछ स्पेस खाली रह जाएगी. 8th पॉइंट इज सॉलिड्स डू नॉट फ्लो. जब स्पेस ही नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, देन हाउ कैन दे फ्लो. सो सॉलिड्स डू नॉट फ्लो. हियर इज द arrangement of particle in the solid. Each one shows the atom. These all are the atoms, है ना. And they have very little space, as you can say, these all have very little space between them. It is known as intermolecular space, है ना. And the force working between them is known as intermolecular force. Force को intermolecular force कहा जाएगा और space को intermolecular space कहा जाएगा. Next is liquid state. Whenever we think about liquid, we visualize flowing water. जब भी पानी इस लिक्विड की बात होती है तो पहला हमारे दिमाग में क्या आता है, पानी आता है. ठीक है. इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं. द फर्स्ट वन इज लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स शेप. लिक्विड की फिक्स शेप नहीं होती है. जिस बॉटल में डालो बॉटल के शेप में, ग्लास में डालो ग्लास के शेप में. द लिक्विड कैन टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर स्टोर्ड बिकॉज ऑफ देयर वीकली अट्रैक्टेड एंड मूविंग पार्टिकल्स. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्किंग बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड इज वीकर देन द सॉलिड्स, है ना. एंड दे हैव मोर स्पेस देन द सॉलिड. सॉलिड के कंपैरिजन लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होता है और इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस भी होता है. और जब स्पेस होगा तो पार्टिकल्स मूव करेंगे तो उनका शेप फिक्स नहीं होगा. सेकेंड वन इज लिक्विड्स हैव फिक्स वॉल्यूम. वॉल्यूम भाई एक गिलास है, उसको आप एक बाल्टी में डालिए, एक बॉटल में डालिए, वो हमेशा एक गिलास रहेगा, उसकी क्वांटिटी कम नहीं होगी. बट एट गिवन टेम्परेचर द इंटर पार्टिकल स्पेस ऑफ लिक्विड इज फिक्स. दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच. लिक्विड को आप बहुत ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते हो. इसके लिए आप एक एग्जांपल पढ़ सकते हैं दैट इफ़ यू टेक अ बलून फिल्ड विद द वाटर, है ना, तो एक यू एट अ लिमिट यू कैन कंप्रेस द वाटर बलून. अगर पानी वाला बलून होगा सब गड़बड़. अगर here is an example, you cannot compress the water filled balloon with much more if mouth of
इफ माउथ ऑफ द बलून टाइड विद अ स्ट्रिंग, अगर आप एक बलून, इफ यू टेक अ बलून एंड फिल इट विद द वाटर एंड इफ द माउथ ऑफ द बलून इज टाइड, अगर उसके बलून में आप पानी भर के उसको बांध दोगे तो यू कुड नॉट कंप्रेस द बलून मच, है ना, बहुत ज़्यादा कंप्रेस नहीं करोगे, ज़बरदस्ती दबाओगे तो बलून विद बर्स्ट, बलून जो क्या हो जाएगा, फट जाएगा, है ना। तो एक लिमिट तक यू कैन अप्लाई द फोर्स, यू कैन कंप्रेस द लिक्विड बट नॉट टू एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा उसको नहीं कर सकते हैं। थर्ड वन इज लिक्विड शो फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी मीन फ्लो, फ्लूइडिटी मीन्स फ्लो, फ्लो मीन्स बहना, है ना, एंड इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड एज वेल एज गैसेज ऑल्सो फ्लो, है ना। एयर फ्लोज, पता होगा, आपने सुना होगा गैसेज फ्लो, है ना, एयर जो होती है वो फ्लो होती है, ठीक है। सो लिक्विड हैव द प्रॉपर्टी, लिक्विड्स शो फ्लूइडिटी, इट मीन्स दे कैन फ्लो फ्रॉम हाई टू डेप्थ और फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ऊंचाई से गहराई तक या हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक वो मूव हो सकते हैं। द फ्लूइडिटी ऑफ लिक्विड्स वेरीज ड्यू टू डिफरेंस इन देयर डेंसिटी, अगेन इट डिपेंड ऑन द डेंसिटी। अब डेंसिटी लिक्विड की कैसी डेंसिटी है, ऑयल देखा है, ऑयल लीजिए, केरोसिन लीजिए एंड वाटर लीजिए, दीज ऑल आर द लिक्विड्स, लेकिन जो आपका मस्टर्ड ऑयल होएगा, नॉर्मल जो मस्टर्ड ऑयल होएगा वो थोड़ा सा गाढ़ा होगा, है ना, वाटर थोड़ा सा हल्का होगा और केरोसिन और ज़्यादा हल्का होगा। तो इट्स ऑल अबाउट द डेंसिटी, है ना। फोर्थ पॉइंट इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज लेसर देन सॉलिड्स बट हायर देन द gases, sorry, higher than the its gases, it is higher than that of gases। जितनी जो भी इसकी डेंसिटी है लिक्विड्स की, है ना, वो सॉलिड्स से तो कम होती है लेकिन गैसेस से ज़्यादा होती है। फिफ्थ वन इज द पार्टिकल ऑफ लिक्विड हैव हाई काइनेटिक एनर्जी एज कम्पेयर टू सॉलिड, क्योंकि स्पेस होता है बीच में तो इनकी काइनेटिक एनर्जी कंपेयर टू सॉलिड ज़्यादा होती है। फोर्थ वन इज रेट ऑफ डिफ्यूजन इज फास्टर एज कम्पेयर टू सॉलिड्स, सॉलिड्स के कंपेरिजन में इनका डिफ्यूजन भी ज़्यादा होता है, दे कैन ईजिली मिक्स विद एनी अदर सब्सटेंसेज, है ना। तो दीज आर द इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन लिक्विड्स। यहाँ देखिए कंपेयर टू मूवमेंट भी हो रहा है, ये पार्टिकल सारे मूव, जो लाइन शो हो रही हैं इट इज़ फॉर द मूवमेंट, है ना, पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं इजीली और इनके बीच में स्पेस भी ज़्यादा है। थर्ड वन इज गैसियस स्टेट, गैसेस की बात करें तो इनके दीज पार्टिकल्स आर मच फादर मतलब दूर होते हैं, अपार्ट फ्रॉम ईच अदर कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। सॉलिड्स और लिक्विड से कंपेयर करें तो इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस भी ज़्यादा होता है, इनकी स्पीड भी ज़्यादा होती है, ठीक है। द प्रॉपर्टीज आर द गैसेस डू नॉट हैव फिक्स शेप, ना तो गैसेस का फिक्स शेप होता है ना, एंड एज द पार्टिकल्स आर वेरी फार अपार्ट बिकॉज ऑफ नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसीलिए इनका शेप फिक्स नहीं होता है और इजीली एयर जो है वो फ्लो होती रहती है। अभी बताया ना, फ्लूइडिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड एंड गैसेस बोथ। सेकेंड पॉइंट इज द गैसेस डू नॉट हैव, second point is the gases do not have fixed volume because the particles have high kinetic energy and can move in all direction। it is a question, ठीक है, कौन सा state of matter है जो सभी डायरेक्शन में मूव करता है, then gases is the matter which can move in all directions। क्यों? क्योंकि इनकी kinetic energy कंपेयर टू solid liquid के बहुत ज़्यादा होती है। gases are highly compressible because the particles are far apart under the normal कंडीशंस, ठीक है। गैसेस को एक बलून लो, हवा भरो, है ना, तो आप उसको बहुत दबा सकते हैं, कंपेयर टू वाटर बलून यू कैन कंप्रेस इट मोर, है ना, द एयर बलून, है ना। यहाँ देखिए है इज़ अ डायग्राम, पिस्टन होता है, जैसे टायर में हवा भरते हैं वो पंप होती है ना। अगर आप जहाँ से आप पहिए में वो जो ट्यूब होती है जो आप टायर में जोड़ते हो, अगर आप उसको उंगली से दबा दें देन यू कैन नॉट पुश द पंप, है ना। सो इट इज़ द पिस्टन, है ना, ये एक सिलेंडर शेप है, ये एक पिस्टन है। ये पिस्टन कब करेगा काम, जब ये स्पेस खुला होगा, इसको बंद कर देंगे ना, अगर आप इसको बंद कर देंगे देन यू कुड नॉट मूव द पिस्टन, लेकिन अगर इसका मुंह खुला है देन यू कैन ईजिली कंप्रेस द पिस्टन। वाई? बिकॉज इट इज़ फिल्ड विद द गैसेस एंड गैसेस हैव अ लॉट ऑफ, हियर यू कैन क्लियरली सी इट हैव अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, और जितनी जगह होगी तो उतना उसको ईजिली कंप्रेस किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट इज the gases show high thermal expansion। thermal means temperature, it is a word related with the temperature। gases का thermal expansion बहुत
ज़्यादा होता है, क्योंकि इनके बीच में जो इंटर पार्टिकुलर फोर्स होता है, इंटर मीन्स बीच में, पार्टिकल्स के, है ना, फोर्स होता है वो बहुत हायर होता है, इसलिए उनको इजीली बहुत जल्दी वो मूव कर सकते हैं। 5th पॉइंट इज़ द डेंसिटी ऑफ गैसेस इज़ वेरी लो। गैसेस की डेंसिटी बहुत लो होती है, इसलिए वो आसानी से फ्लो हो जाते हैं, बह जाते हैं। जैसे ये बलून है, यहाँ पे हाइड्रोजन बलून है। जो गैस वाले बलून्स होते हैं आपने देखा होगा, दीज ऑलवेज मूविंग फॉरवर्ड, ये हमेशा ऊपर की तरफ उड़ते रहते हैं ना, नीचे की तरफ नहीं लुढ़कते। क्यों? बिकॉज दीज ऑल आर फिल्ड विद द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या, एक तरह की गैस है, और गैस कैसी होती है, हल्की होती है, तो हमेशा ऊपर की तरफ उठेगी। 6th पॉइंट, द गैसेज हैव नेग्लिजिबल रिजिडिटी, हार्डनेस, रिजिडिटी मीन्स हार्डनेस, एंड हाई फ्लूइडिटी। जो बहने की कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन जो हार्डनेस है इनकी, सख्त होना है, रिजिडिटी मीन्स होता है हार्ड, और फ्लूइडिटी मीन्स होता है फ्लो, है ना। तो फ्लो तो इनका बहुत ज़्यादा रहेगा, रिजिडिटी इनकी ना के बराबर रहेगी, ठीक है। 7th वन इज़ द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन गैसेस। डिफ्यूजन जो होता है गैसेस का वो बहुत हाई होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज़ वेरी हाई, क्योंकि गैस इजीली किसी भी दूसरे पार्टिकल्स में जाके मिक्स हो सकती हैं। नेक्स्ट इज़ गैसेस एक्सर्ट प्रेशर। अब ठीक है, गैसेस में स्पेस भी बहुत ज़्यादा है, गैसेस का फोर्स भी बहुत कम है, लेकिन जो स्पेस है इनके बीच में, देखो ये सारा स्पेस खाली है ना, लेकिन फिर भी वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। कैसे पता? अगर आप एक बलून को फुलाएंगे, ठीक है, फुला रहे हो, एक लिमिट के बाद बलून कहीं ना कहीं बर्स्ट हो जाएगा। क्यों बर्स्ट हो जाएगा? क्योंकि बलून के अंदर जो आप हवा भर रहे हैं वो एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है ऑन द वॉल्स ऑफ द बलून, है ना, और उस एयर के प्रेशर की वजह से वो बलून बर्स्ट हो जाएगा। देन यस, गैसेस एक्सर्ट प्रेशर। Here is a comparison between the solids, liquids and gases. ठीक है, पैकेजिंग मतलब होता है, पैकेजिंग पार्टिकल्स कैसे हैं, पैकेज कैसे हैं। सॉलिड्स के पार्टिकल कॉम्पैक्ट होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं, लिक्विड्स में थोड़ा सा स्पेस होता है, गैसेस में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स का स्ट्रॉन्ग होता है, लिक्विड्स का मॉडरेट होता है, मॉडरेट MODERATE, मॉडरेट मीन्स होता है मीडियम, मॉडरेट मीन्स मीडियम, ना बहुत हाई ना बहुत लो, है ना। तो लिक्विड्स में मॉडरेट होता है, लेकिन गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी वीक होता है। शेप वॉल्यूम की बात करें तो सॉलिड का शेप भी फिक्स है, वॉल्यूम भी फिक्स है। लिक्विड्स का वॉल्यूम फिक्स है, शेप फिक्स नहीं है, लेकिन गैसेस का वॉल्यूम और शेप दोनों ही फिक्स नहीं है। कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो दबाने के लिए जो सॉलिड्स हैं वो रिजिड में आते हैं, बिल्कुल दबते नहीं हैं, बहुत ना के बराबर दबते हैं। लिक्विड्स मॉडरेट हैं, थोड़े बहुत दब सकते हैं, लेकिन गैसेस को आप बहुत ज़्यादा दबा सकते हो। पार्टिकल मोशन सॉलिड्स में ना के बराबर होता है, लिक्विड्स में मॉडरेट होता है, और गैसेस में बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ डेंसिटी। सॉलिड्स की डेंसिटी हाई होती है, लिक्विड्स की मॉडरेट होती है ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, गैसेस से कम लेकिन सॉलिड से ज़्यादा। और इसकी गैसेस की इट्स वेरी लो। डिफ्यूजन सॉलिड्स में ना के बराबर होता है, मैक्सिमम नहीं होता है, काफ़ी हद तक ना के बराबर होता है। यहाँ पे मॉडरेट होता है, यही हाई सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है। एनर्जी की बात करिए तो एनर्जी लोवेस्ट एनर्जी होती है जो इंटरमोलिकुलर स्पेस और एनर्जी होती है, ठीक है। पार्ट इन लिक्विड्स में जो है सॉलिड्स से कम लेकिन सॉलिड से ज़्यादा, लेकिन गैसेस से कम होता है, और लेकिन जो गैसेस की एनर्जी होती है, पार्टिकल्स का मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। रिजिडिटी और फ्लूइडिटी की बात करें तो सॉलिड्स रिजिड होते हैं, फ्लूइड नहीं होते। जो लिक्विड्स हैं रिजिड भी नहीं होते लेकिन फ्लो करते हैं, गैसेस भी रिजिड नहीं होते, फ्लो करते हैं। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है सॉलिड्स में ना के बराबर होता है, लिक्विड्स में मॉडरेट होता है और गैसेस में मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो इट इज़ द ओवरऑल summary of solid, liquid and gas. If you have learned this table then you will easily write the properties या characteristics of solid. केवल solid की property पूछा है तो ये solid की properties हैं, liquids की पूछा है तो liquid की है, gases की पूछा है तो ये gases की properties हैं। से 3 questions आते हैं, है ना। नेक्स्ट डिफ्रेंशिएट बिटवीन सॉलिड्स एंड गैसेस, तो भी यही आंसर लिख देंगे इसी में से आप, है ना। अगर डिफरेंस बिटवीन solid and liquids पूछा है then it is the solid and it is the gas,
इट इज़ सॉलिड एंड इट इज़ सॉरी लिक्विड, है ना. इन दोनों को लिख दो, योर आंसर इज डन. तो बेसिकली यू हैव टू लर्न दिस टेबल ओनली, है ना, एंड 5-6 काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन इजीली आंसर ऑन दिस. Okay, it is enough for today. I hope you have understand all the topics, but if you have any doubt you can see the video again, है ना, to clear all your doubts. Thank you.